ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಇವರ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದೊಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಲೆ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ರೋಚಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓದುವಾಗ ತುಂಬಾ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಅದು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ, ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಪತಂಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಲೆ ಅವರು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೋಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಲೆ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸರ್ವೋದಯ ಮಂಡಳಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅವರ 4ನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮವರಾದಂಥ ಕೆ ವಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಿ ಟಿ ಅರುಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂಥ ದೀಪಕ್ ಸಾಗರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಗೋಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಗೋಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದೆ ನಾನು 75 ವಯಸ್ಸೀಗ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಲೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ 75ನೇ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ರುದ್ರಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಂಟು ಸಹ ಈ ನಡುವೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮವನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಋಣಮೂ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರುಋಣಿ. ಓದಿದ್ದು DVS ಅಲ್ಲಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, BEd ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕಚ್ಚು, ಗೋವಾ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕಲಿಸಿದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಲೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪರಪ್ಪನಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜೈಲಿನವರೆಗೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಇದೆ, ರಕ್ತದಾನದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ ಕೈ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೈ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಇಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿ. ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸು. ಸೊ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 88 ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಂಬೋಲೆಯ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 48 नासिक आपको उम्र क्या था? 10 से 12 30 उम्र 16ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೈಲಿನ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಂಬೋಲೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು 40 kg 50 kg ಇರ್ಬೋದು, 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದವನ್ನ ಮೊದಲು ನೀನು ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಕುರುಳಾಕರದ ರೌಡಿಯನ್ನ, ಅದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಾಳೆ ಮರ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಮರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಾಳೆ ಮರ ಬಹಳ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೇಸರ್ನ ಹಿಡಿಕೆ ಸಹ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಳೆ ಮರವನ್ನ ರೇಸರ್ ಹಿಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸಹ ರೇಸರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡವು. ಬಾಳೆ ಮರದ ಪತ್ರದಿಂದ ಇದರಿಂದ ದಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಒಂದು ರೇಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಗವಾನಿ ಮರ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತದೋ, ಅದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೋ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಂಬೋಲೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗಾಯ್ತು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗಿಂತಲೂ ಅವರೇ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ವಲ್ಸಾದ್ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಲ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2008 ನಾಸಿಕ್ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾಸಿಕ್ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ವಲ್ಸಾದ್ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಲ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದಾ ಭೀತಿಯ ಎಚ್ಚರದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಗಾಡಿ ನಿಂತಾಗಲೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಆತಂಕ, ತಳಮಳ, ತಲ್ಲಣ. ಈಗ ಎಂತಹ ನಿರಾತಂಕ ಪ್ರಯಾಣ! ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದೇ ತಾನೆ, ನಿರ್ಭೀತಿ. ಇಂತಹದೇ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ತಾನೆ ಮಾರಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದ ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಅಪಮಾನದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಿಲ್ಲುವೆ ಗಾಂಧಿ ತನ್ನ ಕೈ ಚೀಲದಿಂದ ಆತ್ಮಕಥೆಯ 2ನೇ ಭಾಗದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ನ ಪುಸ್ತಕವಾದಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಒಳನುಗ್ಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಆತ್ಮದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳಾದ 2 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ದಿನಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾತಾಡದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಂಬೋಲೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. पत्रकार भाई बंधु, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। यहाँ इस अच्छे पावन भूमि पर मुझे आने का मौका मिला और इतना अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मेरा घूमने का आने का भी, जब भी मैं देश में घूम रहा हूँ तो यही है कि क्राइम फ्री सोसाइटी होना चाहिए। क्राइम फ्री सोसाइटी होना चाहिए। क्राइम फ्री सोसाइटी होना चाहिए क्योंकि क्राइम है, ये डिसीज है, साइकोलॉजी डिसीज होता है। और ये जो गुनाह है जन्मजात कोई गुनहगार नहीं होता है। माँ के पेट से कोई पैदा नहीं होता है गुनाहगार बन के। परिस्थिति, वातावरण, संगत और उसकी बुरी आदतें इंसान को गुनाह के रास्ते पर ले जाती है। और क्षणिक क्रोध। और मुझे भी जब मेरा पहला गुनाह हुआ तो बहुत, मैं 16 साल का था और 7th क्लास में पढ़ रहा था। तो वहाँ कुछ छेड़खानी और झगड़ा हो रहा था। तो हम देखा कि उधर क्या हो रहा है। तो पब्लिक खड़ी थी, तो
पिक्चर में जैसे देखते हैं ना, भीड़ जमा होती है, कहीं झगड़ा होता है, लेकिन कोई बचाने छुड़ाने नहीं आते। तो हम भी जाके देखने लग गया वहाँ क्या हो रहा है। तो वो एक आदमी एक महिला को छेड़खानी और गाली अपशब्द बोल रहा था, गाली बोली। तो हम भी देख रहे थे। तो वो महिला ने कहा अगर आपकी माँ बहन को कोई ऐसा बोलता तो आप देखते थे क्या, कुछ तो बोलते रहे ना। तो मैंने उस आदमी को कहा कि अंकल जान दो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक नहीं है। तो उस आदमी ने मुझे ही आप शब्द बोलने लग गया। तो क्षणिक क्रोध इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए वो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो वो स्पॉट छोड़ देना चाहिए या पानी ग्लास पीना चाहिए, कुछ तो मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो लाइफ टाइम खराब हो जाता है। एक गलती, छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी खराब कर देती है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर वो आदमी को मैंने गुस्से में उस तरह से वार किया और आईपीसी धारा 324, आईपीसी 37 और एक केस लगाया। और फिर पुलिस वाले आकर मेरे पिताजी को ले गए। फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, फिर मुझे अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। 16 साल की जगह मेरे को 18 साल डाल के अत्तर रोड सेंट्रल जेल भेजा। अत्तर रोड सेंट्रल जेल में अमर नायक, अश्विन नायक, दाऊद गैंग, राजन गैंग, छोटा शकील, ये सब लोग के शूटर लोग थे। और वहाँ तो नया कॉलेज हो गया मेरे लिए, क्योंकि ये कॉलेज जहाँ जाता है आदमी कुछ तो नया सीखता है। तो वहाँ तो क्रिमिनल लोग की दिन भर वही चर्चा होती थी, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो किया, इस केस में रॉबरी में इतना सजा है, मर्डर में इतना सजा है, ये बेल मिलता है, इसमें बेल मिलता है, वो लोग का जो डिस्कस होता है। और जो नए नए लोग आते हैं ना क्रिमिनल लोग, तो पुराने क्रिमिनल लोग है ना, उनको बुलाते बिठाते, सिगरेट पिएगा, तंबाकू खाएगा, कुछ खाएगा, आप कहाँ से आए, उनका इंटरव्यू लेते, क्या आप कहाँ से आए, कौन सा केस किया, पुलिस स्टेशन कौन सा था, कैसे पकड़ा गया, पहले क्यों मारा, हथियार कहाँ से लाए, ये क्रिमिनल लोग भी इंटरव्यू लेते हैं और उनका जनरल नॉलेज बढ़ाते रहते। तो मैं वहाँ फिर 1-2 महीना देखा, कोई आता नहीं जाता नहीं, घर वाले आके मिलते थे। तो 2-2.5 महीने में मुझे समझ में आया क्या क्राइम इतना बड़ा डिसीज है ना। और जेल है ना, जेल सुधारना गृह बोलते, पुनर्वसन केंद्र, लेकिन वहाँ आदमी गया ना, बहुत लकी आदमी है जो चेंज होके आएगा। नहीं तो वो अगर 1 साल रहेगा ना तो इतना बड़ा बदमाश बन के आएगा कि उसके दिमाग में क्राइम ही चलती है। लेकिन वहाँ है ना, वो जो पुराने जो जेल में रहते कैदी, वो नए कैदी को ट्रेन करते क्या, अरे इसने मारामारी किया है, चाकू मारा है, इसने रॉबरी किया है, इसने चोरी किया है, तो चोर वाले चोर को ढूंढते हैं, इसको अपने गैंग में लेंगे, उसका ब्रेन वॉश करेंगे। रॉबरी वाले को ढूंढता है, मर्डर वाले को ढूंढता है, हवाला वाले को ढूंढता है, चरस गांजा वाले को ढूंढता है। ये सब संगत बोलते हैं ना, तो वो अपने टीम बनाते और फिर उनको फिर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। और फिर पता चलता है क्या ये आईपीसी के कितने अपने धाराएं कितने, 511 संविधान लॉ के, फिर लॉ में कौन सा हाफ मर्डर में कितना दिन, 3 महीने बाद बेल मिलता है, 7 साल की सजा होती है, फुल मर्डर में 14 साल 20 साल की सजा होती है, अगर अच्छे बर्ताव के लिए 14 साल में छूट जाते हैं। चोरी, चेन स्नैचिंग करते हैं ना, जो चेन छिप के, तो उसको 379 आईपीसी धारा लगती है। 380 यानी घर फोड़ी, घर में घुस के चोरी करता है ना उसको। 379 394 रॉबरी को लगता है। जैसे बाइक चोरी किया तो आईपीसी धारा 379 लगता है, उसमें 10,000 का बेल होता है, उसमें 5,000 का होता है। और जो रॉबरी केस है 5 लाख 10 लाख 20 लाख का रॉबरी है, तो उसमें 2 केस लगता है, 20-20 हजार की जामिन लगता है। तो वो पैसा फिर रिकवरी पुलिस को कैसा देती है, पूरा इंक्रूवमेंट हो जाता है। और जेल में जाने के बाद में आदमी अगर वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहता है, यानी किसी को गुस्सा आ रहा है बार बार, तो ये समझना चाहिए कि भाई ये साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, गुनाह है, आजारी मनाची पुण्य ऐसा बोलते हैं ना। वो बार बार गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, या हो सकता है उसकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल रहा होगा, या उसके पास पैसे नहीं होंगे, या कुछ तो नहीं होने की वजह से वो गलत हरकत कर रहा है। और ये गलत करते करते उसके हाथ से गुनाह हो जाता है, फिर उसको जेल जाना, और जेल गया तो फिर वो और बिगड़ के आ जाता है। तो साइकोलॉजी डॉक्टर की बहुत जरूरत है जेलों में, क्योंकि मेंटली डिसीज है ये। तो वो सब समझ में आया। मैं बाहर आया तो फिर वो मेरे स्कूल के दोस्त लोग, ये लोग दूर दूर रहने लग गए, वो क्रिमिनल लोग आ गए, उनसे बातचीत होने लग गई, फिर उनके साथ में मैं क्राइम करने लग गया। ऐसे करते करते संगत गुण आया। वहाँ का परिस्थिति बहुत खराब था। 1991 में जो है ना, जो मिल रहा था ना, जो 90, 80, 70 में सब लोग बम्बई जा रहे, बॉम्बे, क्यों, उधर बहुत पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, ये होगा, सब बम्बई जा रहे है ना। तो लेकिन वहाँ उस टाइम में ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी, तो वहाँ माफिया लोग बहुत थे। जैसे देश आज़ाद तो हुआ था,
लेकिन देश आजाद के अच्छाई तो आई थी, लेकिन बुराई भी थी। जमीन बहुत थी, है ना, स्मगलिंग बहुत हो रहा था, दारू स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग और लैंड माफिया, है ना, वाटर माफिया और ड्रग सप्लाई, ये सब लोग भी एक तरफ, जहाँ एक तरफ अच्छाई होती है ना, एक तरफ बुराई भी होती है। जहाँ सच है वहाँ झूठ भी चलेगा, लेकिन क्या है, सच झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, सच ज्यादा दिन चलता है, लेकिन सच को उस टाइम में आदमी कोई मानता नहीं, अरे नहीं, क्योंकि बुरे लोग एक साथ में जल्दी आ जाते हैं। रात को पार्टी है बोलेगा तुरंत आ जाएंगे, अच्छे लोग को बोलेगा रात को मिलते हैं, जरा डिस्कस करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे सोसाइटी के लिए, तो मिलेगा नहीं, बोलेंगे नहीं हमारा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आएंगे। तो बुरे लोग का ये रहता है। तो ये सब चीजें हैं, तो हमारे अंदर ही मैं वहाँ सीख गया और मेरे पर 19 केसेस हुए और 2 तड़ीपार हुआ। एक एमपीडी यानी महाराष्ट्र प्रूवन डेंजर एक्ट, महाराष्ट्र प्रूवन डेंजर एक्ट हुआ, वो लगा, और 2 एक तड़ीपार। तो उस टाइम में गुजरात, यूपी, बिहार और इस तरह गोरखपुर वहाँ जाके रहता था। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर तड़ीपार किया ना, तड़ीपार यानी आप समझ रहे, तड़ीपार वो तो कहाँ तक करते हैं, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, लेकिन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से बाजू का डिस्ट्रिक्ट कितना किलोमीटर होगा, 60 किलोमीटर होगा, बराबर ना। तो वो तो कभी भी रात से आगे आएगा बाइक से, इधर कुछ किया गया और वो बताएगा भाई डिस्ट्रिक्ट में हुई नहीं, मैं तो आपने खुद पुलिस तड़ीपार किया मुझे, और वो पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाना पड़ता है उसको। तो बम्बई से तड़ीपार किया तो थाना में जा सकते हैं, थाना से तड़ीपार किया तो रायगढ़ में जा सकते हैं, रायगढ़ से तड़ीपार किया तो पालघर वालघर गुजरात लगता है। तो क्रिमिनल आदमी का दिमाग है ना, एक कदम आगे रहते हैं पुलिस वाले से। आदमी भी पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, वो बात अलग है, वो बाद में पुलिस पकड़ ही लेती है, लेकिन दिमाग आगे रहता है। तो यही दिमाग अगर वो अच्छे सोसाइटी के लिए, अच्छे काम के लिए लगाएगा तो वो कितना अच्छा सोसाइटी के लिए काम कर सकता है। ये हम करके मैं खुद पहले चेंज हुआ। मुझे गांधी जी की आत्मकथा मिली, मुंबई सर्वोदय मंडल के TR के सोमैया जी उन्होंने दिया। मेरा ऐसा ऐसा पढ़ने के बाद मैंने उसमें पढ़ा, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, करुणा, मैत्री। तो ये तो सब हर धर्म में बताया, गीता में बताया, कुरान में बताया, बाइबल में बताया, हर धर्म में। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, तो वो किधर सिखाया नहीं जाता। तो घर से ही आचरण में करना चाहिए। अभी घर में देखो, फोन आया ना, फोन आया, किसी को फोन आया तो पिताजी बोलता है, बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, क्या दरवाजे के बाहर, और बच्चों को क्या होता है, बोलो पप्पा घर में नहीं है, वो बोलता है पप्पा घर में नहीं, मतलब पप्पा दरवाजे के बाहर है, घर में तो है। तो हम घर में सिखाते हैं हमारे बच्चों को झूठ बोलना। तो ये सब चीजें हैं, तो हम झूठ खुद परिवार से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन भी वैसे ही बोलेगी। हाँ अभी ट्रेन में वहाँ 5 मिनट में पहुँचता हूँ, बोले आधा घंटा दूर है, फिर भी उल्टे नहीं, अब पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में, वेटिंग मतलब इतना झूठ बोलते। प्रैक्टिकली थोड़ा सा ट्रेन पकड़ रहे तो बॉम्बे में क्रॉस कर लेते, पटरी क्रॉस, एक क्रॉस, वो सोचते नहीं कि हमारा क्या होगा, बीवी बच्चे का क्या होगा। और क्रिमिनल लोग क्या करते हैं, अंदर जाने के बाद उनको बाहर छूटने के बाद जॉब नहीं मिलता है, तो बाहर आने के बाद में उनको बहुत पैसा चाहिए, तो चोरी करेंगे, बाइक चोरी, कार चोरी, या तो रॉबरी, या तो किसी आम आदमी के घर में घुसेंगे और चाकू को मार के छीन लेंगे, जिस आदमी ने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया, कभी सपने में भी उसको कुछ देखा नहीं रहता है बुरा नहीं, ऐसे आदमी को मार दो। तो ये क्यों, क्योंकि पैसा। तो ये बुराई खत्म हो जाए, अच्छा ही आए, क्राइम फ्री सोसाइटी हो, इसके लिए हम मुंबई सर्वोदय मंडल की ओर से 10,000 प्रिजनरों का अब तक गांधी पीस एग्जाम ले चुके हैं। ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें लास्ट में रहते हैं फीडबैक, आप क्या करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, क्या नहीं, और उसको हम जॉब कहीं तो दिलाते हैं। तो ऐसे 13 लोग चेंज हुए और 10,000 लोगों का हमने पीस एग्जाम दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंटों में लाइब्रेरी जो सेटअप करते हैं ना जेल में, तो भाई जाके देखो, गवर्नमेंट खुद बोलती है आप आओ, आपका सुनेंगे, हमारा तो सुनते नहीं, पुलिस वाले का झगड़ा ही करते गए। क्योंकि क्रिमिनल के बीच में ना 12 घंटा पुलिस वाला है ना, बहुत बड़ा ड्यूटी करता है, क्योंकि अंदर रहते हैं ना, सुबह 9 बजे जाता है, रात को 12 बजे आता है, उनके बीच में रहते रहते वो बिगड़ जाता है, वो गाली देने लगता है वाला पुलिस वाला, क्योंकि उनका है ना, उनका वो जो वाइब्रेशन, बात, थॉट और सब उस तक आते रहता है, उसको गुस्सा आता है, वो बोलते हैं, वो बिगड़ जाता है। बिगाड़ने के लिए, सुधारने के लिए रखा है, वही बिगड़ जाता है। तो उसको भी हेल्प करना चाहिए पुलिस वालों को, जो जेल में डिपार्टमेंट में है ना, जेल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, उनको भी साइकोलॉजी की जरूरत है। और उनको आप जैसे नागरिक लोग समाज में बुला के उनको कभी कभी उनका सत्कार समारोह करना चाहिए, ताकि वो भी मोटिवेट हो।
क्योंकि हर आदमी को मोटिवेशन चाहिए, बैड लोगों को बैड मोटिवेशन चाहिए, गुड लोगों को गुड मोटिवेशन चाहिए। तो सोसाइटी का काम है हमें कुछ तो कुछ दे उनको देना चाहिए। तो मैं चेंज हुआ, फिर आज मैं पूरे महाराष्ट्र में हर जगह जाकर स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम, गांधी पीस प्रोग्राम और अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में जाके युवाओं को यही बोलता हूँ, क्राइम मत करो। क्राइम करेगा तो लाइफ टाइम शॉर्ट टाइम लाइफ रहती है और ज्यादा दिन नहीं जी सकते। और ये जो बड़े बड़े डॉन लोग रहते ना, जो दाऊद है, छोटा शकील है, राजन, वो कभी नहीं मरते। वो मरे कभी, अभी इतने साल हो गए, वो दुबई, साउथ अफ्रीका, लंदन वहां जाके बैठते। ये मरता कौन है मन में? ये छोटे मोटे प्यादे है ना, ये एरिया का डॉन रहेगा, उसको बताएगा ये इसको मार, उसको मार, इससे पैसा ले, इससे ले, से देखिए वो उसको सब पता चल गया। तो नया कोई तैयार हो गया, तब तक नया उससे भी एक्टिव, तो इसको एक्टिव उसको एक्टिव के लिए इसको मरवा देते। तो इसको खबर देके या तो दुश्मन को खबर देके उसको मरवा देते, फिर नए को बोलते अभी तू इसका काम संभाल, आज से तू इस एरिया का भाई। फिर वो कुछ 5 साल चलता है, फिर उसको मरवा देते। वो चेस करते ना, चेस, प्यादे मरते, राजा मरता है, घोड़ा मरता है, ये मरता है, राजा कभी नहीं मरता। तो वैसा ये क्राइम की दुनिया ऐसी है, जिसमें कोई भी क्राइम की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। जिसको ज्यादा दिन नहीं जीने का है फिर वो जाओ, क्योंकि अपने को ऑप्शन, चॉइस और चांस सबके पास रहता है। तो चांस भी है, चॉइस भी है, तो सिलेक्ट करना अपने में। तो ये कहाँ से हो सकता है? ये गांधी थॉट से हो सकता है, विनोबा थॉट से होता है। जो भी महापुरुष हमारे देश में होके गए, बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सब जिन्होंने विचार दिए हैं, तो हम उनके विचार पढ़ के हमारा परिवर्तन हो सकता है। मैंने यही किया, पहले मेडिटेशन किया, ये किया, और मेरे अंदर फीलिंग्स क्या है, और मैं मुझे क्यों गुस्सा आता है बार बार, मैं क्यों ये क्राइम कर रहा हूँ। तो मैं ये सब पहले मेरा जांच किया, मैंने ये किया, और फिर बाद में मुझे पता चला कि बाहर का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब दुश्मन है। वो मेरे को नुकसान दे और मैं कुछ तो बाहर करता हूँ, और बाद में फिर नुकसान मेरा ही होता है। और फायदा किसका होता है? पुलिस का होता है, वकील का होता है, जेल का होता है। और नुकसान किसका होता है? मेरा होता है, मेरी फैमिली का होता है। उनको बार बार कोर्ट आना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है, जेल आना पड़ता है। तो ये सब सोसाइटी का नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात तो सोसाइटी का वातावरण क्या होते हैं ना, वातावरण खराब हो जाता है, सोसाइटी का जो पीस नहीं रहता है उधर। तो ये बात है, तो मैं सीखा और मैं चेंज हो गया। आपको कुछ सवाल अगर कुछ हो गए तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सवालों से क्या है, आप पत्रकार रहते हैं ना, है ना, कम है, उतना नहीं है, 40-80-60% है, कम है। क्योंकि पहला तो क्या है मालूम क्या, जो सुधरने वाला है ना, जो क्रिमिनल, वो एक डिसीज में, मेंटली डिसीज है ना। क्राइम क्या है? मेंटली डिसीज है, गुस्सा आना, पैसा चाहिए। तो वो तो ये समझना चाहिए कि वो मेंटली डिसीज हो गया उसको, तो उसको साइकोलॉजी डॉक्टर की जरूरत है। और चाहता हूँ क्या, क्राइम में मत जाओ, क्योंकि क्राइम में की दुनिया बहुत शॉर्ट रहती है। पैसा तो मिल जाता है, नाम भी मिल जाता है, फेम भी मिल जाता है, लेकिन जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन उसको ना हमारा भारत जैसा देश उस बढ़ के जाना पड़ेगा। इंडिया में तो रह नहीं सकता है, और हमारा भारत जैसा देश इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, तो उसको यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? मलेशिया, दुबई, साउथ अफ्रीका कहीं रहना, और वहाँ भी डर नहीं जीना पड़ेगा। और वो बाद में उसका जो डिसीज है, वो परेशान रहेगा तो ड्रिंक क्वीन का सहारा लेगा, ये लेगा, उसको हर टाइम मौत सताती रहेगी ना, मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा ना। तो वो डर के जीने से अच्छा है, डर के जीना है ना, उससे अच्छा देश के लिए कुछ करके डॉन बनो। मतलब देश के लिए डॉन ही बनने की क्या जरूरत है, देशभक्त बनो, है ना, अच्छा नागरिक बनो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना सोसाइटी के। मेरे पर जितने 19 केसेस थे, रिपार, ये सब मारामारी, तो मैं बेल पर छूट के आता था, जामीन पर, या तो फिर हम पंच फिर्यादी विटनेस जो है उनको मैनेज कर लेते थे, धमकाते थे, कोर्ट में आके वो बोलते थे ये नहीं था, इसने नहीं मारा, ऐसा छूट जाता था। तो वो सब के बाद में सब केसेस छूट जाते थे। तो उसके बाद में लास्ट केस जो था, मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया, उस आदमी को धमकी दिया, मारा, ये किया। तो मैंने उसको खत लिखा कि मैंने आपको गलती किया और बहुत मारा, धमकी दिया, अभी भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और जब कोर्ट के सामने मेरा ट्रायल चल रहा था केसेस, तो मैंने जज को एक लेटर लिख के दिया कि मैंने ये गुनाह सब किया है, आप जो भी सजा देंगे मुझे मान्य है, क्योंकि मैंने उस आदमी को धमकाया, मारा, जो कुछ हुआ, तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने तैयार हूँ। तो जज साहब ने कहा तुम्हें 7 साल की सजा हो सकती है। और मेरे बाहर दोस्त लोग थे,
वकील था वो बोले 2 महीने में बेल हो जाएगी या तो केस फाइनल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, सत्य के लिए 7 साल जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सच का वैल्यू समझ में आया। सब फाइनल है, 13 साल पहले फाइनल हुआ सब। अभी मैं 13 साल से गांधी विचार प्रचार कर रहा हूँ। मेरा डीडी नेशनल पर आप डॉक्यूमेंट्री बनाया, डीडी नेशनल, तो यूट्यूब पर विकिपीडिया पर भी बहुत सारी जानकारी है। क्राइम पेट्रोल पर सोनी चैनल पर भी मेरे एपिसोड हो चुके हैं। गुनाहों के जख्म 13 लोगों के, 13 पीपल के। और टेडक्स स्पीकर हूँ मैं, 2 बार टेड टॉक में भी है। और अभी अगले महीने में प्राइम अमेजॉन प्राइम वीडियो, उसके ऊपर एक क्राइम एंड लॉ एक्सपर्ट, उस पर मुझे बुलाया, एक्स गैंगस्टर क्राइम एंड लॉ एक्सपर्ट। ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 7 पास हूँ, लेकिन मुझे लॉ के बारे में पूरा 501 धारा में कौन से धारा में कितनी सजा है, क्या है, कितना बेल लगता है, जामीन कितना होता है, कितने दिन बाद बेल मिल सकती है, रिलीज कैसे होंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। मैं खुद जज को मेरा एप्लीकेशन लिखता था, वकील की जरूरत नहीं थी। मैं खुद जज को बोलता था मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत है, मेडिकल में भेजना ये करना है, माननीय न्यायाधीश महोदय विद्यालय मैं ये दिनांक से जेल में हूँ, ऐसा है, मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट खराब है, ये है, मुझे बाहर मेडिकल के लिए भेजो। और ट्रीटमेंट के लिए 1 हफ्ता में बाहर सिविल हॉस्पिटल में आराम करना चाहता हूँ, ताकि फिर भी मैं जज को देता था, जज चेकअप करता था, फिर अंदर का जो डॉक्टर है उसको मैं मैनेज कर लेता था, वो लिख के देता था, हाँ है इसको थोड़ी तकलीफ है। फिर 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहता था बाहर, फिर मेरे परिवार वाले रोज आते थे मुझे खाना वाना लेके 1 हफ्ता। तो बहुत दिमाग आदमी का। सत्य के प्रयोग जो है ना, उन्होंने भी बहुत सी गलतियां की, बचपन में चोरी की, बीड़ी पी, और दोस्तों के संगत में कुछ गलतियां भी की, सोने का कड़ा भी चोरी करके बेचा पिताजी का। लेकिन उन्होंने को जब पता चला कि सच की क्या ताकत है, उन्होंने जो राजा हरिश्चंद्र का किताब पढ़ा, हाँ, वो सिनेमा देखा वो, और वो सब, तो उनको लगा कि सच इतना अच्छा है तो सच को लोग फॉलो क्यों नहीं करते, आचरण में क्यों नहीं करते। तो हर किसी को ना, हर धर्मों में, पुराण गीता बाइबल में सच का बताया ना, वैल्यू, मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, ये सब है, तो वो फॉलो क्यों नहीं करता है इंसान। क्योंकि इंसान तो ज्यादा दिन जिएगा नहीं, 60 साल, 100 साल, 50 साल, 70 साल है ना, लेकिन फिर भी ये वैल्यूज को फॉलो नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है। और पुराने संत जो भी हो गए उन्होंने सबने किया, तो मुझे लगा क्या, अरे मैं जब क्राइम करने में इतना देरी कर सकता हूँ, क्योंकि क्राइम में भी चाकू रखना, चूड़ी रखना, रिवॉल्वर रखना, घूमना, ये भी हिम्मत का काम है ना, तो सच बोलने में क्यों डरता हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगा कि फिर एक्सपेरिमेंट करने लगा, कल से मैं सच बोलूंगा, फिर एक दिन सच, ऐसा करते करते मेरा लाइफ चेंज हुआ। क्योंकि माता पिता को लगा कि क्या अच्छा, हम लोग इसको पढ़ा रहे अच्छा इंसान नागरिक बनाने के लिए, और ये तो गुस्से में आके क्राइम कर दिया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। टाइम में वो लॉ है ना जो 1971 में इतना ये था, मेडिकल चेकअप किया, ये किया, पुलिस वाले भी ना उनका जो कार बढ़ने के लिए ना 16 का 18 भेज दिया, जितना केस रैंकिंग में जितने केसेस बढ़ाएंगे उतना पद मिलेगा ना, प्रमोशन, तो हो गया। मेरा एक ने लाइफ चेंज कर दिया। पुलिस वाले भी बोलते ना विलन बन के आया मेरे लाइफ में, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे लाइफ में कुछ अलग होने वाला था। देखिए गांधी जी का इंडिया में इतना वैल्यू नहीं, लेकिन फॉरेन में सब लोग वही वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं ना, गांधी जी के थॉट्स फॉलो कर रहे हैं सब लोग। अच्छा साउथ अफ्रीका में होगा, तो ये सब चीजें हैं। तो ये क्या है, मन में 2 पार्टी रहती है ना, वैसा रहता है, अरे एक अच्छा ही है तो बुरा ही है, बुरा ही है तो अच्छा ही है। तो अच्छे लोग हैं तो हमेशा बुराई पे, बुरे लोग हैं तो अच्छाई पे टिप्पणियां करेंगे, क्योंकि उनको भी उनका वैल्यू बढ़ाना है। तो बुरे लोग हैं तो अच्छाई को दबाने की कोशिश करेंगे, वर्षों से होते आया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, तो अच्छे और बुरे हैं, और उनमें जो है अच्छे आदमी को हमेशा तकलीफ होती है, इसको हमें पड़ताल नहीं करनी। गांधी जी ने कहा है चाहे मेरी क्षय हो जाए लेकिन सत्य की जय हो जाए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए सत्य अहिंसा को फॉलो मत करो, तुम पहले आचरण में लाओ, देखो तुम कर सकते हो क्या। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये करो वो करो, वो बोला पहले देखो, सुनो, समझो, बाद में करो। हर धर्म, हर गुरुओं ने यही कहा, हम बोल रहे इसलिए मत करो, आपके अंतरात्मा की आवाज सुनो, इनर वॉइस है ना, इनर वॉइस, ट्रूथ मींस की व्हाट, इनर वॉइस। बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगता था यार मैं गलत जगह फंस गया क्योंकि जो देखता ना, अरे जेल में था, ये ट्राई किया, इसको नौकरी काय को देंगे, नौकरी नहीं है ना, छोकरी भी नहीं नौकरी छोड़ो, छोकरी भी नहीं मिलती। और फिर बाद में फिर परिवार वाले भी बोलते कि अरे ये क्या है, ये तो जेल में था, ऐसा था, और जिसने काम किया
वो लोग भी बोलते थे क्या ये ऐसा आदमी ऐसा है वो। तो ये क्या हमारे सोसाइटी है ना, इनर नहीं जानता है, आउटर आउटर बहुत है। इसलिए आपका पेपर बहुत चलता है, क्योंकि लोगों को बाहर कल क्या हुआ वो पता करना है, किधर क्या हुआ क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन इनर क्या हो रहा है अंदर, और हम अंदर से कैसे चेंजेस ला सकते हैं वो कोई फॉलो नहीं करता। नहीं वहां मिले, हम लोग छोड़ के चले गए, और बाद में फिर ऐसा कोई मिला नहीं। और दूसरा मेरा जो दोस्त लोग थे, 2 लोग एनकाउंटर हुआ, पुलिस 3 लोग सॉरी, और 4 लोग चेंज हुए। 4 लोग चेंज, मैं जेलों में जाकर लाइब्रेरी सेटअप करता हूँ, लाइब्रेरी, और बाद में कपाट 6 गोदरेज के कपाट बुक्स सब देता हूँ, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूँ। और बाद में वो पढ़ के छूट के आने के बाद में उनको जॉब के लिए बाहर रोटरी क्लब, सोसाइटी क्लब, उनमें जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। और उनको बोलता हूँ क्राइम फ्री अगर सोसाइटी करना है, क्राइम फ्री सोसाइटी करना है, तो हमें उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। उनको नहीं तो वो लोग छूट के आएगा, रिलीज होके आएगा तो फिर तो गलत ही काम करेगा ना। तो उनको सुधारने के लिए हमें उनको जॉब दिलाना पड़ेगा और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। मैंने नोटबंदी हो गया तो अच्छा आदमी को जल्दी ऊपर थोड़ी आने देते तो मेरा ये है, जितना देर से होगा अच्छी बात है, नहीं होगा वो ये ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಇಂಥ ಜೈಲಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾದರ್ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಜೈಲಿ ಅವರಿಂದ ಇವನ್ನ ಗೌರವ ಆನರರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆನರರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದೆರಡು 3 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈಗ 2020 ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನೀಕರಣ ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಸಿತಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವರೀಗ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಆಟೋಟಗಳನ್ನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೌನಿಯವರು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೌನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ